بہت اپنی صحافتی زندگی میں بہت سے IAS آفیسر IPS دیکھے ہیں. وہ جب ریٹائرمنٹ کہیں پہنچتے تو دبئی میں، امریکہ میں، لندن میں فلیٹ اور دکان مکان سب لے لیتے ہیں اور اپنے بچوں کی پڑھائی بھی وہاں کرواتے ہیں. دھیرے دھیرے شفٹ کرتے ہیں، پورا خاندان ان کا شفٹ ہو جاتا ہے. یہ انسان جو ہے یہ ہمارے بیچ میں ناسک ضلع میں بھی رہے 2001 میں، اور ان کا جو ریٹائرمنٹ ہے پونے میں ہوا. پونے میں رہتے ہوئے انہوں نے پھر پونے میں بہت سارے وقف جائیداد کو بچانے کا کام کیا ہے. کافی ماہر ہیں اور مسلم پسندیدہ بورڈ کو بھی مدد کرتے ہیں. کوئی عہدہ نہیں لیتے، یعنی یہ امریکہ لندن میں جا کے نہیں بسے. اور ابھی جب میں نے ان کو اس کے لیے کال کیا تو دلی سے آئے ہمارے درمیان. ان کے پین تک یہاں بھی بیک بون میں کہیں درد ہے. اس کے باوجود اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی خرچ نہیں، کوئی اپنے خرچ سے آئے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں سب اپنے خرچ سے آئے ہیں الحمدللہ. کسی نے کسی ایک چائے کی فرمائش بھی نہیں کی ہم سے. تو اس موضوع کا الحمدللہ یہ حق ادا کرنے کے لیے سب سے جاندار تقریر یہی ہے ہمارے درمیان. اگر یہ نہیں آتے تو ہم کو پروگرام آگے بڑھانا پڑتا. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ بولیں کہ ہم اس تاریخ کو پروگرام رکھیں گے. اتنی میری طبیعت اس لیے ضروری تھی کہ یہ بہت قیمتی آدمی ہے اور ہمارے لیے اور بھی قیمتی ہیں کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. اور ہمارے شہر کے بہت سارے لوگ جو علی گڑھ میں پڑھے تھے، شیخ وکیل صاحب، ہمارے عبید الرحمان علی صاحب، ان کے ساتھ رہے ہیں اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ہمارے یاسین مومن صاحب، اور وہ رشتہ آج تک کے رکھے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا پونا، اشفاق ایوبی صاحب اور میں، تو انہوں نے کہا کہ میں عبید الرحمان علی کی والدہ سے ملنے بھی جاؤں گا، وہ ہے کہ نہیں، زندہ ہے کہ نہیں. اتنا یعنی خیال رکھتے ہیں. اپنے ساتھی کی والدہ جو آج 100 سال کی ہے، ان کی عادت کے لیے یہ ابھی صبح میں جائے گی. ایک درد مند دل رکھنے والے انسان کی ایک چھوٹی سی میں جھلک یہاں دے رہا ہوں. آپ شروع کیجیے. السلام علیکم. حلیم صاحب نے کچھ زیادہ کہہ دیا، تھوڑی سی تو وضاحت میں کروں گا. میری سروس انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس نہیں تھی، انڈین ریونیو سروس IRS، جس میں انکم ٹیکس میں جوائن کرتے ہیں. تو میں 76 میں جوائن کیا تھا انکم ٹیکس میں، 2009 میں ریٹائر ہوا. آج اللہ کا شکر ہے 15 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے. اور میری زندگی اور صحت جو بھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ میں اپنے کو اس سے منسلک کیا ہوں. منسلک کرنے کی ایک وجہ ہے، ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے، بہت پہلے کی بات ہے، میں نے کام شروع کیا تھا. میرا ملا صاحب، تو ہمارے ملا صاحب ابھی آپ کے سامنے بولیں گے، آپ کو پتہ لگے گا وہ کیا ہے. تو انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا، میرا مکان دیکھتے رہے بڑے غور سے. میں دیکھتا رہا انہیں کہ جب دیکھ چکے تو میں بات کروں. پھر انہوں نے میری پینشن پوچھی، میرے بچوں کا پوچھا. یہ سب چیزیں پوچھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ صاحب آپ پھر وقف کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں؟ یہ ان کے الفاظ تھے، ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں. اس وقت اگر ٹانگ تھی تو آج میں پورا اندر گھس کے باہر نکل آیا ہوں 3-4 بار. یہ اور بات ہے کہ فرق نہیں پڑا، کیونکہ آپ یقین مانیے تو میں بہت دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے 10-12-15 آدمی دے آر ہارڈلی مٹیریل. میں اپنے لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں، میں جن کو اپنی اصطلاح میں اونچی ٹوپی والے کہتا ہوں، ان سے میں کہتا ہوں صاحب اپنے وطن کو آپ وقف بورڈ پہ استعمال کرو. وقف بورڈ کیا کر رہا ہے؟ اور یہ چیز آج سے نہیں، میں 5-7 سال سے برابر یہ آگاہ کرتا آ رہا ہوں کہ گورنمنٹ ایک دن آپ کی پراپرٹیز کو ٹیک اوور کر لے گی. آن دا گراؤنڈ آپ، کیونکہ میں انکم ٹیکس کا آدمی ہوں، فائنینشیل مس مینجمنٹ، تو فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے تو آپ کو اس کو ٹیک اوور کر لے گی. لیکن اس ٹیک اوور کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ کے افسر اپائنٹ ہوں گے بجائے بورڈ کے، اور وہ اس کو مینیج کریں گے. یہ اور بات ہے کہ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بہرحال ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے، تو دیکھیے کیا آتا ہے، فیصلہ تب طے ہوگا کہ کیا ہونا ہے. بہرحال وہ بات میں پوری کر لوں. تو انہوں نے کہا ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں. تو بدجستہ میں نے کہا، میں نے سوچا نہیں تھا بالکل، یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے ذہن میں. میں نے کہا بھائی آپ کو اور مجھے دونوں کو 6 فٹ کے گڈھے میں جانا ہے.
और उस गड्ढे में जब जाएंगे तो जो नमदार होगा वो पूछेगा कि नमाज और ये सब तो पूछेगा, और ये पूछेगा कि तूने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, क्या किया, क्या जवाब देंगे? बराबर वाली कब्र से जो अच्छी ज़मीनें दे के गया अल्लाह के नाम पे फी सबीलिल्लाह, वो जवाब देगा कि साहब मैं ये करके आया, तो मुझसे पूछा जाएगा तूने क्या किया, तो उस वक्त मेरा जवाब क्या होगा? ये बात मैं जगह जगह कहता हूँ लोगों से, हर मुसलमान को इस पर यकीन होना चाहिए, आखिरत के साथ आखिरत के हिसाब पे भी यकीन होना चाहिए कि हर मुसलमान से सवाल होगा कि तुमने क्या किया, जिसमें बहुत सारी बातें आती हैं। अब मैं समझता हूँ मैं अगर बोलूँ तो 4-6 घंटे बोलूँगा तो बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें करना चाहिए, हम कर सकते हैं, हमें जिससे बहुत अच्छे नताइज निकलेगी। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने में, जो मैं आने में मैंने बताया था। पूरे मुल्क में इस वक्त 8,72,985 प्रॉपर्टीज़ हैं औकाफ की, 3,56,396 औकाफ है, ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स है। और जिसमें सबसे, जिस वजह से मैं बता रहा हूँ, 8,72,950 में 985 में ये लिखा हुआ है कि 4,36,151 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसको नहीं है? जिन्होंने डाली है वक्फ बोर्ड। अब पूछे कि किस बात की तनख्वाह लेते हैं, किस बात के लिए बैठे हुए हैं, आपके सामने आवेंगे तो आप देखेंगे कि वो इधर उधर देखेंगे कितने लोग मुझसे सुनने आए हैं और किसने मुझसे योरानर करके बात की, किसने जनाब करके बात की, क्या सर्विस देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके साथ खराबी है, खराबी हमारे साथ है इसलिए कि हमने अपना हक नहीं मांगा, ये हमारी जायदाद है। और हमारे से मतलब ये कतल नहीं, जो कह रहे थे कि ये लंदन अमेरिका नहीं जाते, मैं जाता रहता हूँ, मेरा बच्चा था। तो लेकिन क्या है कि जो लाइन में आखिरी आदमी खड़ा हुआ, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुम में सबसे गरीब है, जिसके लिए वो दुआ मांगते थे कि अल्लाह मुझे गरीबों के बीच से उठाना, हमारे रसूल ने जिसके लिए दुआ मांगी, उन गरीबों की हम खिदमत नहीं कर सकते ये पूछ के इन हरामखोर लोगों से कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स है, ये तुम्हारा वो है। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी दरगाह है, वहीं पे वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, पंचक्की की दरगाह। पंचक्की वाले दरगाह के मेरी रिपीटेडली मेरी और मुल्ला साहब की दरखास्तें लगी रही, और लोगों ने भी दी हैं, RTI में कोई जवाब नहीं दिया गया है कि भाई इसके 2700 एकड़ का क्या होगा। 1800 एकड़ औरंगाबाद एक्सेल्स में है, जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा है 38 एकड़ का, उसका मेरे पास स्नैपशॉट है। अगर ऐसा पहले इंतजाम होता तो मैं बनाता है करके कि आपको दिखाता। तो इसमें लिखा हुआ है नीचे मैनेजमेंट प्रॉपर्टी मैनेज बाय वक्फ बोर्ड, ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी करंट स्टेटस इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, और ये अभी की, ये 3 रोज पहले मैंने इसको उतारा। और इस पे है कौन प्रॉपर्टी का, वो क्या लिखा हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर एंड जिला परिषद। आप लोग गुजरे होंगे, आपने देखा होगा पुलिस हेडक्वार्टर है, साथ में पुलिस के बंगले हैं और क्वार्टर्स वगैरह हैं, सब कुछ वहाँ पर परेड वगैरह भी होती है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और रोड के साइड पे जिला परिषद के एस्टेब्लिशमेंट है। अब क्या है, वक्त की प्रॉपर्टी तो बेशक हो सकती है, वो हमारे सिर्फ किराएदार हो सकते हैं। क्या उनसे कोई किराया आता है? बार बार मेरे पूछने के बाद नहीं बताया जाता। और यही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में RTI के नाम में तो बिल्कुल दरवाज़ा बंद कि हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे आप? तो ये 4-6-10 लोगों की मेहनत से नहीं होगा, ये सब लोगों को लगना पड़ेगा। ये बात सोचिए कि ये 53 एकड़ का कुछ आप थोड़ा सड़क वगैरह का निकाल लीजिए, कितना कसीर किराया आ रही है। औरंगाबाद सेल्स में न मालूम कितने बच्चे हैं जिनको अपनी फीस जमा करने का पैसा नहीं मिलता, मांगते बच्चे जरूर। कितने गरीब गुरबा हैं, मेरी महीने में 3-3.5 हज़ार की दवा थी जिसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, तो मैं जानता हूँ कि वो दवा बेचारा गरीब जो है 30 रुपये की भी नहीं लेने पाता। तो हमारे औकाफ किस लिए बने? हज़रत उमर को जायदाद मिली खैबर के, उसकी लड़ाई के बाद उन्हें एक जायदाद मिली, तो जिस किस्म के इंसान थे आप लोग बेहतर जानते हैं, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, पूछा कि मैं इसका क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कफ रोक दो इसे बिकने से, गिफ्ट से, एक्सचेंज से,
और इसको जो इसका प्रोड्यूस आवे, इसका यूज़ आवे, या इससे जो आमदनी आवे, वो गरीब गुरबा यतामा मुसाफिर और ज़रूरतमंदों पे खर्च करो। अब आप सोचिए कि कितना हो रहा है हमारे पूरे मुल्क में। ये जो अमेंडमेंट आया, तो अमेंडमेंट में ये कहा गया, काफ़ी लोग मिसलीड हुए हमारे लोगों में से। अब अगर आपने टीवी में भी देखा होगा, बयान भी देते फिरते हैं कि साहब बहुत मुफीद एक्ट है और अभी तक हमें वक्त से क्या मिला है। तो उसमें वो भी कहना बिल्कुल गलत है। मस्जिद भी वक्त है, कब्रिस्तान भी वक्त है, जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं, जहाँ आप दफन होंगे, जहाँ फातिहा पढ़ने जाते हैं, तो ये सब औकाफ है। तो इतना तो आपको मिला ही मिला है। और जो वो नहीं मिला, जो आमदनी से गरीब गुरबा को, बेवाओं को जाना चाहिए। एक इस एक्ट में एक सेक्शन है जो कहता है कि जो जिनका कोर्ट तय करेगा कि इनको वक्फ बोर्ड जो है इनको देगा पैसा गुजारे बसेरे के लिए, तो उनको वक्फ बोर्ड से मिलना चाहिए। हमारे वक्फ बोर्ड से पूछिए कि कितना मिलता है, कितना दिया है आपने अब तक। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 93 का, ये उलमा कौंसिल ने फैसला किया था, एक अपील की थी, बहुत अच्छी अपील थी कि साहब पंजाब में जो मसाजिद हैं उनके पेश इमाम और उनके मुअज्जिन को तनख्वाह दे रहे हैं, तो पूरे मुल्क में होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इंतराज़ हुआ गवर्नमेंट की तरफ से और बोर्ड की तरफ से कि साहब इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उनके जज साहब के जो अल्फाज हैं वो तकरीबन ऐसे हैं कि शर्म आना चाहिए। जो आपको प्रेयर में लीड करते हैं, आप उनको तनख्वाह नहीं दे सकते। अब आप पूछें आप ही के शहर में मालेगांव में कितने लोगों को तनख्वाह मिलती है वक्फ बोर्ड से। तो वो उनसे मिले ना मिले, कम से कम इतना इनायत करें कि जो मसाजिद गायब हुई हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि 345 या कितनी हैं, उन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ नासिक में मालेगांव में, तो उनमें से कितनी मसाजिद एक्चुअली हमारे कब्जे में हैं, कितनी गिर गई, कितनी के ऊपर दूसरे कब्जे हो गए, और उसमें उन्होंने क्या मदद की। एक सेक्शन है वक्फ एक्ट में, सेक्शन 54, जो बड़ा रिलेवेंट सेक्शन है और जो सेक्शन इस पूरे तमाशे के पीछे है, जो ये अभी हुआ है, जिससे अमेंडमेंट आया है। अगर ये सेक्शन नहीं होता और सेक्शन 40 होता भी, यानी बोर्ड को तय करने वाला, तो भी कोई मुदायदा नहीं था। डर उससे था कि भाई ये तो बोर्ड को पावर मिल गई कि आप नोटिस दीजिए, उनसे पूछिए कि भाई आप कैसे बैठे हुए हैं, आप अपने कागज दिखाइए। फिर आप अगर मानते हैं कि वक्त की हैं, CEO साहब मानते हैं, तो वो रिपोर्ट दें, उसमें ट्रिब्यूनल में वो फैसला दें अपना कि ये वक्त की जायदाद है, वो खाली करें। वहाँ से ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल दोबारा सुनवाई करेगी और उसके बाद अगर पार्टी की बात सही है, ये वक्त की जायदाद है, तो वो कलेक्टर को लेटर देगी और कलेक्टर उसको खाली कराएगा। तो कहा यह जाता है कि कोई 10, 12, 15 प्रॉपर्टीज़ में रेफ़र किया गया, लेकिन अभी तक उसमें 2 ही 3 में हुआ, बाकी में एक्शन नहीं हुआ। तो जो एक्शन नहीं हुआ वो जिम्मेदारी आपकी है, उसके लिए पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। जिस तरीके से इस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए से जो ये कहा जा रहा है, हालांकि वो भी पक्का नहीं है कि वक्त बाई यूज़र ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि वकील साहब ने, मैंने खुद सुना TV पे, तो उन्होंने ये कहा कि साहब गवर्नमेंट इसके ऊपर रिव्यू किया है कि आगे से प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से ये लागू होगा कानून। हालांकि हकीकत ये कि प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से कहाँ से वो होगा, जो वक्त बाई यूज़र है। और वक्त बाई यूज़र के साथ एक और बात बताऊँ मैं कि लोगों का ये कहना है कि साहब जिसमें कोई कागज़ नहीं, आप यकीन मानिए कागज़ हैं। मैंने खुद देखा है रेवेन्यू में, मालगुजारी में जिक्र होता है माशिद मस्जिद, उसका एरिया भी है, तो वो क्या कागज़ नहीं है, वो क्या एविडेंस नहीं है। तो कम से कम जो है वो तो आप जमा कर लीजिए। मैं लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में गया, एक बॉम्बे में एक बड़ी जायदाद है लाल शाह बाबा की, वो आज फिर डिस्प्यूटेड है, बीच में कई लोगों ने अटैक किए, मैंने भी किया था, तो बहुत कामयाबी नहीं मिली। अब एक तीसरे साथ गए हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कोई 73 एकड़ की जायदाद है, कहाँ पे, बॉम्बे में, ये समंदर के किनारे लालबाग में 73 एकड़, और उसमें जहाँ एंट्री है उसमें आगे लिखा हुआ है टू बी डिलीटेड। तो ये बात 7-8 साल पहले मैंने देखी, भाई टू बी डिलीटेड क्या है, एक्ट को खोल के देखा तो एक्ट में कहीं कोई वो नहीं, ये टू बी डिलीटेड तो मान लें। तो ये सुना मैंने किसी को क्या हुआ है,
اس کے چکر میں اس کو دیکھنے کے لیے کہ شاید اس کے کچھ کاغذ وہاں ملے برٹش لائبریری میں، تو وہ تو میں نہیں پہنچنے پایا، میرے پاس زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا، لیکن ایک کاغذ کے جو میں فوٹو لے کے آیا ویسے ہی میں نے فوٹو کھینچ لیا، وہ بہت کام آیا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مدراس میں ایک گاؤں ہے جس میں ایک بڑا مندر ہے پرانا، 1500 سال پرانا، اور یہ کہا گیا کہ صاحب یہ 1500 سال پرانا مندر جو ہے وقت کیسے ہو گیا۔ پھر بہار کے ایک گاؤں میں یہی تنازع اٹھا کہ صاحب یہ پورا گاؤں کیسے وقت ہو گیا۔ تو مجھے کچھ کلک کیا کہ میرے کاغذوں میں کچھ ہے ایسا، بہت سارے کاغذ میں نے جمع کیے ہیں جو زیادہ تر میرے اس میں ہیں آئی پیڈ، تو میں نے کھول کے دیکھا تو بامبے میں یہ کون سا بڑا علاقہ ہے بالکل سمندر کے کنارے، تو ساؤتھ بامبے، تو وہاں کے 3 گاؤں کا ذکر ہے، دیکھیے میں پانچ سناتا ہوں، 1843 کا ہے، 1848 کی رپورٹ ہے، یہ کوئی بی اے بلین اسکوائر کوئی آفیشیل تھا، انہوں نے ریونیو کمشنر کو رپورٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ انڈاؤمنٹ ٹو پارٹ پڑھ رہا ہوں میں، endowment to Hindu and Mohammedan shrines of saints and temples, 3 whole villages۔ پھر اس کے آگے جو اس سے اور روشنی ملتی ہے، ساگون، نارنگی and willow trees and half of 3 villages etc۔ یہ پیڑوں کے نام کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ یوں لکھے کہ پیڑوں کی جو فصل بکتی ہے تو ایکچوئل جو چیز وقف ہوتی ہے وہ وہاں کی آمدنی وقف ہوتی ہے۔ وہاں مندر ہے، وہاں پہ کوئی خان صاحب رہتے ہیں یا مان لیجیے پروار صاحب رہتے ہیں، تو ان کے مکان سے ان کی پراپرٹی سے کوئی بحث نہیں ہے، تو اس گاؤں کی زمین جو زمیندار کو یا اونر کو جو لگان ملتی تھی وہ لگان اس نے اللہ کے نام پہ وقف کر دی۔ تو یہ کوئی سوال اٹھنا نہیں چاہیے کہ صاحب پورا گاؤں کیسے ہو گیا۔ تو اس قسم کے ڈاکیومنٹس بھی اویلیبل ہیں، اور ہم کوشش کریں تو بالکل وہ ڈاکیومنٹس ہمیں ملیں گے، جس سے کہ آپ یہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے، انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ فیصلہ ٹھکانا ہے، اس سے کہ بالکل سراسر زیادتی ہے، کانسٹیٹیوشن کے پروویژنس کا کلم کلا وائلیشن ہے، اور اس بات کو کر کے کیا گیا ہے کہ صاحب جیسے مسجد جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہ اسینشیل پارٹ نہیں، تو مسجد اسینشیل پارٹ نہیں ہے اسلام کا، تو مسجد اسینشیل پارٹ نہیں ہے تو نماز قائم کہاں ہوتی ہے؟ نماز قائم کب ہو؟ اور جب قائم ہوگی تو وہ جگہ ہوگی جہاں پہ آپ قائم کریں گے، وہاں پہ آپ جمع ہوں گے، پڑھیں گے، تو وہی مسجد ہے۔ تو اب اس مسجد کو لے کے اگر وہ وقف نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا وقف اگر مان لیے سکھوں میں بھی ہوتا، کرسچنس میں بھی ہوتا، جینیوں میں بھی ہوتا، تو کہا جا سکتا تھا کہ بھائی یہ تو سبھی میں ہے، یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک پارٹ ہے؟ بہرحال تو یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دیکھنے کا یہ کیا ہوتا ہے، تو مجھے یہ کہنا تھا کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، کوشش کرنا، جو جتنی کوشش کر سکیں۔ یہ جو مساجد کی ڈیٹیل ہے کہ یہاں پہ اتنی مساجد ہیں، لیکن میں نے بتاتا ہوں آپ کو، ناسک ضلع میں، ناسک پراپر میں 488 مساجد ہیں۔ میں خود ناسک میں 4 سال پوسٹڈ رہا، مجھے تو 40 بھی دھیان نہیں، 488 مساجد ہیں، اور یہ آپ کے یہاں پہ آپ کے ضلع میں 200 سمتھنگ ہے، مالیگاؤں میں 247 مساجد ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی 247 مساجد ہیں کیا؟ اور یہ وقف بورڈ کی خود چڑھائی ہوئی یہ فگر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس فگر کے علاوہ انہوں نے ایک کام اور کیا، جب میرے جیسے کچھ لوگوں نے اس میں جھانکنا شروع کیا اور گھسنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے، ان سے سوال ہو گیا، تو انہوں نے ایک دوسری ایک پورٹل بنا لیا اپنا، اور کہا صاحب ہم نے جتنی ہمارے پاس جائیدادیں ہیں جو ہم نے چڑھائی ہیں وہ ہم نے الگ اس کی انٹری کر لی ہے، اور جب آپ اپنا لیٹر دیں گے تو ہم اسے دیکھ کے بتا دیں گے۔ تو ابھی جب یہ پورٹل کی بات کی تو جو پورٹل پہ آپ کو چڑھانا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب غصے میں کہتے ہیں کہ نہیں چڑھانا نہیں، بالکل غلط بات ہے، ہمارا نقصان ہوگا، ہمیں چڑھانا ہے، لیکن جب چڑھا دیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہوگی۔ اس کو 17-18 پیج کی ریکوائرمنٹ ہے، حالانکہ بہت سمپل ہے، پڑھیں گے تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اور وقف بورڈ کی ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وقف بورڈ جو ہے سب کو سمجھائے۔ ہمارے یہاں پونا میں 23 کو میٹنگ ہے، ممبر صاحب ایڈریس کر رہے ہیں،
वैसे मेरे ख्याल में जगह जगह होगी, और कुछ नहीं है तो वक्फ बोर्ड के अफसर को, जो लोकल अफसर है वो असेस करेगा। तो वो सारे अपने कागज, उनसे आपको कागज़ों की कॉपी लेना है और उन कॉपियों को आपको चढ़ाना है। ये और बात है कि दूसरा स्टेप ये है कि वो खुद चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है आगे रिपोर्ट करने के लिए। इसलिए वो सारा मसाला जो है वो जाएगा फिर कलेक्टर साहब बहादुर पे, जो कि बहुत बिजी आदमी है। मैं खुद एक ड्यूटी के सिलसिले में तो 15 दिन में कलेक्टर के ऑफिस में बैठा, तो मैंने देखा और रोज़ाना मैं कहता था, उसको सलाम करता था, मुझसे बहुत जूनियर था, छोटा था, भाई कितना काम करते हो यार, कितना काम करते हो। उसने कहा सर क्या करें, काम हमें करना। तो अब उस जैसे बिजी आदमी को जब ये दिया जाएगा कि मामला कितने दिन में होगा, दिन में उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं हो करेगी। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद कहा गया है, क्लेम सा सेंटेंस था कि टाइम लिमिट जो है बढ़ाई दी जा रही है, शायद साल भर में वो अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन साल भर में जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आप उस वक्त प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी ने मिस्टेक कर दिया कि कोसाबाग की मस्जिद जो है वो नहीं है, ये वक्त नहीं है, तो कलेक्टर साहब इंक्वायरी में 1 साल ले लेंगे, 1 साल तक कोसाबाग की मस्जिद बंद रहेगी। अब आप सोचें कि उस वक्त क्या कैफियत होगी। हमारे बहुत सारे लोग जो है उतावले होकर पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो खुद इस चीज़ में लीडरशिप लें, क्या क्या काम करना है उन चीज़ों को अपनी लीडरशिप में वो काम कराएं, इंश्योर कराएं कि सारा हो गया जैसे यहाँ पे हो रहा है। मैंने सुना कि बहुत सारी मसाजिद की इंक्रीज हो गई, मसाजिद की आमदनी का जिक्र आया। भाई जो भी आमदनी है उसका नेट जो बचता है, जो सेविंग है, उस सेविंग पे 7% आपको वक्फ बोर्ड को देना है। अब वो दिखाया बिल्कुल नहीं जाता। अब मस्जिद का हमारा वो मजहब है जो कहता है कि हिसाब दो और हिसाब लो। हज़रत उमर से एक बुढ़िया ने खड़े होकर पूछा कि उमर ये जो कुर्ता तुम पहने हुए हो, तुम्हें कपड़ा तो इतना नहीं मिला था, इतना लंबा कुर्ता कैसे? तो हज़रत उमर ने कहा कि अब्दुल्ला ज़रा बताओ, उनके साहबजादे थे, बताओ नहीं। तो अब्दुल्ला ने कहा कि इसी कपड़े का एक हिस्सा मुझे मिला था, वो मैंने अपने वालिद को दे दिया, फिर मिला के इनका कपड़ा बना। तो जब खलीफा से, खलीफा वक्त से पूछा जा सकता है, तो हम अपने मुतवल्ली साहबान से क्यों नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते हम कि भाई ये खुदा से डरिए, 6 फुट के गड्ढे में आपको भी जाना है और इसकी कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होगी अगर आपके किसी अमल से किसी गरीब का पेट कटा। हमारा ही मजहब है जो कहता है कि 40 मकान इधर उधर देख के तब खाना खाओ। तो वो 40 मकान खाली खाने के लिए नहीं है, ज़िंदगी की और ज़रूरियात के लिए, जो आम ज़रूरियात है। हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, 50 लाख रुपए लगा रहे हैं। मैंने अपने फैमिली में शादी की बहुत प्रोटेस्ट के बावजूद, और एक घर में 5,000 रुपये नहीं है कोई बेड बनवा के अपनी बेटी को दे सके। तो ये हमारा, अगर हम अपनी वक्त की प्रॉपर्टीज़ को संभाल लें तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तालीम के लिए हम बहुत सारा बना सकते हैं। मैं खुद मुतवल्ली हूँ एक प्रॉपर्टी का, मामला था जो तकरीबन 500 करोड़ जिसकी आज की डेट में वैल्यू है, 170 उसमें इंक्रोचर बैठे हुए हैं, जिसमें 170 में वो लोग हैं जिनके बारे में फॉर्म में पूछा गया है कि रिलीजन ऑफ द इंक्रोचर, इंक्रोचर का रिलीजन क्या है, ये खुद बताता है कि नियत क्या है। अरे भाई, किसी भी कानून में किसी भी क्राइम करने वाले का, पिक पॉकेट का या डकैत का या रॉबर का, किसी हमलावर का, किसी का रिलीजन पूछा जाता है, नाम लिखा जाता है, वलीयत लिखी जाती है, पता लिखा जाता है, रिलीजन ये पहली बार लिखा गया। तो ये आपको मैं सिर्फ होशियार करने के लिए कह रहा हूँ कि इस आगे का वक्त बहुत ही संगीन है। अगर हम आज ना आँख खुली तो यकीन मानिए कि वो 6 फुट के गड्ढे में हमारा आपका कोई जवाब नहीं। तो हमें समझ जाना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे मुल्ला साहब अभी आपके सामने बोलेंगे, बहुत कुछ ये करते रहते हैं और न मालूम कितने लोगों की मदद करते रहते हैं। टेक्निकली वक्फ बोर्ड की इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी नॉलेज है वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट कि हम लोग की सूरत में बहुत अच्छा वक्फ बोर्ड को एक मौका मिला था कि वो कहते हैं कि साहब आप आ जाइए हमारे यहाँ, आप बैठ के हमारी मदद कीजिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जब ये हमें दूर से नजर आवे तो दरवाजे बंद कर दो। मुल्ला साहब से कोई मिलने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया कि उनके जरिए से इंफॉर्मेशन पहुँच रही। अब उनसे ये पूछने की बात है कि भाई ये आपके कोई घर का मामला है
ये जो मैंने बात की पुलिस हेडक्वार्टर की उसकी पंचक्की वाले बाबा की जगह की ज़मीन पे, तो उसमें किसी ने एक प्रपोजल रखा पिछले चेयरमैन साहब, पिछले चेयरमैन साहब शेख साहब के सामने। ऐसा कहा जाता है कि साहब इनसे किराया मांग लिया जाए। उन्होंने पता नहीं नाराज में होके या मजाक में, दोनों एक ही बात थी कि आगे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हम इनसे किराया मांगेंगे, ये हमारे लिए तो काम करते हैं। मैंने जब सुना, मैंने कहा मेरी इनसे मुलाकात है और मैं पूछूंगा कि सरकार एक्ट के किस सेक्शन में आपने काम किया, कौन सा सेक्शन ऐसा कहता है कि आप माफ़ कर सकते हैं, या खुदा के कानून में कौन सा ऐसा है कि गरीब बेटा भूखा मरा है, उसके औलाद उसके स्कूल की फीस नहीं है, उसकी बेटी के जहेज के लिए पैसा नहीं है, तो आप ये कैसे, आप कौन कह सकते हैं? ये 37 एकड़ ज़मीन में कम से कम 25 एकड़ का आपको किराया आना है। औरंगाबाद शहर में 25 एकड़ का किराया कितना होगा आपको सर बिल्डिंग्स? तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ है, जैसे पहले भी लोगों ने कहा कि हमारी कौम जगी रही है अब तक, खुदा के वास्ते जाग जा में। और ये वो वक्त है, आप यकीन मानिए कि चलते चलते मैं बता दूं कि मैं इस काम में क्यों लगा। मैं जब रिटायर हुआ तो 1-2 लोग मुझसे मिलने आए, करीबी लोग थे, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, जिन्होंने अपनी ज़रूरत बयान की कि साहब मुझे 30,000 रुपया चाहिए, मुझे बच्चे का फीस जमा। मैं वैसे ही परेशान था कि इनकम आधी होगी, सैलरी का आधा होता है पेंशन, और शौक में बाहर निकाल ले लिया, तो कुछ बचा नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा साहब 1000 रुपये में, तो उन्होंने मना कर दिए। एक साहब और आए, तो जब दूसरा आए तो मैंने सोचा कि वजह क्या है, तो सीधी वजह थी कि उन्होंने सोचा कि इनकम टैक्स से रिटायरमेंट है, इनके पास 2-4 गोदाम भर के तो पैसा होगा। आप यकीन मानिए कि मेरी आँख में आंसू आया, बेचारी के आंसू। काश में बेईमान होता तो ये तो इनकी तमन्ना तो नहीं होती। खैर बहरहाल मैं परेशान रहता था कि भाई कहाँ से होगा। तो मौलाना वली रहमानी साहब के एक आर्टिकल, नए औकाफ क्यों नहीं बनते, कोई साहब चाहेंगे तो मैं उसकी कॉपी दे सकता हूँ। मैंने बहुत सारी कापियाँ बांटी हैं उसकी। 4 पेज का आर्टिकल है, वो मेरे पास आया ट्रांसलेट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किताब छापी, तो मैंने ट्रांसलेट की। उसको पढ़ के एकदम मुझे लगा कि जैसे रोशनी, जहाँ मैं बैठा पढ़ रहा, मुझे लगा कि मेरे कमरे में रोशनी हो। अरे ये सब है, तो जब ये है तो हमें सिर्फ इतना कोशिश करना है कि इनका तो सही किराया है वो मिले। उन्होंने लिखा कि गवर्नर वेस्ट बंगाल, उनका जो मकान है, उनका वो राजभवन, वो वक्त की ज़मीन है, पार्ट वक्त की ज़मीन है, थोड़ी सी ज़मीन नॉन वक्त की है। तो वो टीपू सुल्तान का ट्रस्ट है, तो कितनी ज़मीन है वो मौलाना नहीं लिखा, तो मैंने अलग से गूगल पे चेक किया तो 23 एकड़ ज़मीन है। मौलाना लिखा कि उसका सालाना किराया 5,500 रुपये आता है, 5,500 रुपये। एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा, कोई खातून थी, उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उनसे जो हेड मुतवल्ली थे कि साहब आप किराया, आप जो आपके वक्त औलाद है, तो लोगों की शिकायत है कि उनको पैसा बहुत कम मिल रहा है। तो उनका भाई पैसा तो बहुत कम मिलेंगे, जब तादाद बढ़ती जा रही है, बच्चे एक आदमी के 4 बच्चे, 4 बच्चों के 8 बच्चे, 12 बच्चे, तो घटेगा। लेकिन उन मुतवल्ली साहब से मुकरमा को नहीं मालूम है कि 5,500 रुपये किराया आ रहा है। तो आप जाके क्यों गवर्नर से नहीं कह सकते कि साहब आप ही के नीचे अदालतें रोज़ाना फैसले करती हैं कि ये बिलो मार्केट रेंट है डील, ये डील अप्रूव नहीं होगा, तो आप खुद जो है वो कैसे दे रहे हैं? खैर 1 साल के अंदर वो बढ़ के 1.5 लाख रुपया हो गया। लेकिन आप सोचिए कि 23 एकड़ कलकत्ता के बड़े मैदान के बराबर 23 एकड़ जमीन का किराया 1.5 लाख रुपया साल का। अब क्या करना है? कोशिश करना है, गवर्नमेंट को दिखाना। अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई ये हो रहा है और नीचे लोग जो है अपना कोई सा भी गेम का आप नाम ले लीजिए, शतरंज खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको कोई वो नहीं है गवर्नमेंट के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कोई पूछने वाला नहीं। एक्ट में सेक्शन है जो कहता है कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट वो जब डिसाइड होगी कि गवर्नमेंट के कब्जे में है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा, और वक्फ ट्रिब्यूनल जब तय कर देगी तो कलेक्टर के पास रेगुलेशन के लिए जाएगा। कुछ लिए 30,700 प्रॉपर्टीज हैं इनके पास, और जिसमें मैं समझता हूँ तकरीबन नहीं होना चाहिए तो 500 प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के कब्जे में होना चाहिए, जो खुल्ला जो रिकॉर्ड है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी। तो क्या एक बार भी नोटिस दिया गया? तो हमारा वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहा। बाकी डिटेल आपको मुल्ला साहब बताएंगे। मैं बड़ी मुझे खुशी है असद साहब ने मौका दिया, अलीम साहब सचिव लाए वहाँ पे,
और आप लोगों ने ऐसा अच्छा प्रोग्राम किया। इस मौके को हाथ से जाने ना दें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि नशिस्तन तौहद बर्खास्तन कि बैठे चाहा और बर्खास्त कर दिया, इसके बाद काम करें। और सिर्फ ये कि बोर्ड में एक आदमी ने एक सवाल किया, यहाँ पे आपके वो आने नहीं पाया, उनकी तबीयत खराब है, एडवोकेट मुजीब मोमिन साहब बहुत काम कर रहे हैं, आप में काफ़ी लोग उनको जानते होंगे। तो एडवोकेट मुजीब मोमिन भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मांगते हैं और बोर्ड से, कुछ आती है कुछ नहीं आती। तो जो वो मांगते हैं वो 10 लोगों को और मांगना चाहिए, 25 लोगों को और मांगना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर बने। चेयरमैन को कंप्लेंट करना चाहिए, साहब क्या हो रहा है। मैंने तो अपने बिहार पे जगह जगह कंप्लेंट्स की कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन अगर कहते ना तादाद में वो क्या कहते हैं कि नक्तार खुदा, मतलब पब्लिक की आवाज़ जो है, हाँ ज़ुबान खल्क़ नक्तार खुदा, तो ज़ुबान खल्क़ खुले खराब है तब। और आप यकीन मानिए कि आप अगर मुतमईन हैं कि आपके पेट में दाना पानी है, इस महीने का इंतज़ाम है, साल का इंतज़ाम है, ये हर इंसान को आता है। अल्लाह का शुक्र अदा करता है इसी बात पे। अल्लाह उसी वक्त नोट करता है कि मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने कितनों का इंश्योर किया, जब तुम्हें ये मैंने दिया, तुम्हारे लिए किया, तो तुमने कितनों का इंश्योर किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन सवाल करना हमारे कब्जे में है, एतराफ़ लगाना हमारे कब्जे में है, आवाज़ उठाना हमारे कब्जे में है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सब्र के साथ सुना मुझे।